Hello guys, in last class we have discussed the complex number regarding magnitude, modulus or conjugate or its polar form or argument. Now some questions that we will today discuss. One of the question is 1 plus iota over 1 minus iota. 1 plus iota over 1 minus iota. Question is that find out the modulus and argument of this question, right? तो हमें क्या करना है, मॉडुलस भी कैलकुलेट करना है और आर्ग्यूमेंट भी कैलकुलेट करना है. तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, वेदर द गिवन क्वेश्चन इज इन फॉर्म ऑफ ए प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर और नॉट. इफ इट इज़ नॉट देन फर्स्ट मेक इट इज इन ए सिंपल फॉर्म. तो बनाने के लिए क्या करना है, रेशनलाइज इट बाय द डिनोमिनेटर. आयोटा इज इन plus or maybe minus, then opposite sign is to be considered and rationalize it for simplification. Now you are getting the product of 1 plus iota whole square, downside a plus b, a minus b, that is the a square minus of b square. Again it will return, this is open, 1 plus iota square plus 2 of iota, डाउन साइड 1 माइनस और माइनस मीनिंग प्लस 1. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लेंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 ऑफ आयोटा, डाउन साइड 2, और वी कैन से ऑन सिंप्लीफिकेशन यू आर गेटिंग ओनली आयोटा. सो द क्वेश्चन कन्वर्ट इन ए फॉर्म ऑफ लाइक दैट. दिस z इज, सपोज दैट इज द z. सो दिस z इज नाउ ऑन रेशनलाइजेशन वी आर गेटिंग इट इज इक्वलेंट टू द आयोटा. So first we will write it is in form of 0 plus 1 iota, right? So therefore we are getting magnitude of z, that is root of real of z whole square plus imaginary of z whole square, and which is equivalent to the 0 square plus 1 square, and the summation is 1, that is 1. यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. that is the modulus of a question. Now argument z equal iota. तो argument मैंने कहा था whenever z is only iota, this is the positive imaginary number in case the theta is pi by 2 directly, and the argument of z that is also pi by 2. Clear? So this question will be complete. Now there is another part. The given is 1 plus iota over 1 minus iota, that we have solved. Argument, modulus, both of them is complete. Another question, 1 upon 1 plus iota. Next question, 1 upon 1 plus iota, that is 1 upon 1 plus iota. फिर क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन to rationalize it किससे, 1 minus iota over 1 minus iota, getting the result is 1 minus iota over a plus b, a minus b. On simplification 1 plus 1, now 1 minus iota over 2, simplified it 1 upon 2 plus minus 1 upon 2 into of iota. ठीक है, this is a complex number proper form. Now therefore the real of z is 1 by 2 and the imaginary of z is minus 1 by 2. यहाँ से आपको अगर दोनों पार्ट आपके पास क्लियर है, रियल ऑफ z एंड इमेजिनरी ऑफ z. नाउ वी विल कैलकुलेट द मॉडुलस ऑफ दिस z. देन मॉडुलस ऑफ z इज एक्सप्रेस बाई रियल ऑफ z होल स्क्वायर प्लस imaginary of z whole square. Now place the value of real of z at the position of this half of square. Now minus of half square. On simplification you are getting 1 by 4 plus 1 by 4. The result is 2 by 4, or that is 1 by 2, or we can say 1 by root 2. That is the magnitude of z. Students, clear? Now we will calculate the argument.
For argument, this is the x, this is y, and the magnitude of x is again same, and the magnitude of y is again this. Now tan theta equal magnitude of y over magnitude of x, half over half, cancel, get 1. थीटा इक्वल कितना आया, पाई बाई 4. अब आपको क्या करना है, दोनों x और y के साइन नोटेड करने हैं. x इज इन प्लस, y इज इन माइनस, प्लस कोमा माइनस. क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये प्लस कोमा माइनस, क्वाड्रेंट नंबर 4, एग्जैक्टली प्लस कोमा माइनस. इन क्वाड्रेंट 4 द आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल क्या होता है, माइनस ऑफ थीटा, सो द आर्ग्यूमेंट इज माइनस पाई बाई 4, राइट. अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि पोलर फॉर्म क्या होगी, तो पोलर फॉर्म एक्सप्रेस कर दें इसकी. पोलर फॉर्म दैट इज इक्वलेंट टू द आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, and r that is magnitude of z and theta that is argument of z, that is argument of z. दोनों वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें. आपने 1/√2 दैट इज़ द मोड z कैलकुलेट किया था, तो पोलर फॉर्म क्या हो गई, आर्ग्यूमेंट ऑफ z आपने निकाल लिया. सो द सब्स्टिट्यूट इन इट एंड यू आर गेटिंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ पोलर फॉर्म. So students, now take the another question. There is given x plus iota y. There is given x plus iota y equal a plus iota b over a minus iota b. That is given. ठीक है. और टू प्रूव आपको दिया हुआ है. टू प्रूव मीनिंग आपको शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1. टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 1. तो देखो सबसे पहले यहाँ दिया क्या गया, एक्स प्लस आइटा वाई, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड विच इज इक्वलेंट टू द अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर. इफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर corresponding रियल पार्ट एंड corresponding imaginary पार्ट दैट इज आल्सो इक्वल, बट दे आर इन ए फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. The left part of the question is in a form of a complex number, whereas the right part of the question is not in form of a complex number. So first, the right part of the given question that should be make in the form of a complex number by rationalize it. Now start. RHS, ठीक है. क्या करेंगे, a plus iota b over a minus iota b. रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज हमें डिनोमिनेटर को देख के करना है. डिनोमिनेटर का जो साइन है उसका अपोजिट आइटा का साइन लेना है. प्रोडक्ट करना है, अप साइड आपका a प्लस आइटा बी होल स्क्वायर आएगा, डाउन साइड a स्क्वायर माइनस ऑफ आइटा बी होल स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सिंप्लीफाइड करोगे तो a स्क्वायर प्लस आइटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 आयोटा a b ओवर a स्क्वायर, माइनस इज देयर, आइटा स्क्वायर माइनस 1 and b square, so plus b square we are getting like that. Now there is iota square which express a square minus b square plus iota 2ab, and this is divided separately to both the terms, then it looks like a complex number. This is the real of z, this is the imaginary of z, real of z, imaginary of z. Now we will equate both of them. X plus iota y is equal, then this is a real complex number. If the two complex number are equal, then their corresponding real of z is equal and their imaginary of z are also equal. Now place them. तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा x मिल गया, वो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, and y we are getting that is 2ab upon a square plus b square. ये हमें x और y दोनों को इक्वेट करने पर हमें मिल गए हैं. नाउ वी विल शो दैट स्क्वायर ऑफ x एंड स्क्वायर ऑफ y, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रूफ, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड स्क्वायर ऑफ x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर प्लस
2ab ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट होल स्क्वायर। इसका रिजल्ट हमें 1 शो करना है। नाउ स्क्वायर ओपन करेंगे आप तो डाउन साइड तो स्क्वायर सेम रह गया, वो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अप साइड क्या हो गया देखो a पावर 4 प्लस बी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाइड करते हैं तो a पावर 4 b पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, दोनों को क्लब कर लेते हो, देन यू आर गेटिंग प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। डाउन साइड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ द न्यूमरेटर इज आल्सो एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट है। जब न्यूमरेटर को आप वापस ऐसा लिख देते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाता है आपके पास में, देखो न्यूमरेटर इज रिटर्न ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, डाउन साइड इट इज रिटर्न ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, both of them are same, then result is 1 which is equivalent to the right hand side of proof. So the question becomes complete. तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है, what is to be given and what we have to find out accordingly. The what is given, use it in the solving of the question and place into the right part or maybe left part of a proof, then you are getting the answer. Clear? अब यहाँ आपने एक चीज़ समझ में आ गई कि whenever the two complex number are equal then they should be first their proper standard form, and if they are equal then their corresponding parts are also equal. It means their real part equivalent to the real part of another complex number and their imaginary part that is equivalent to the another part of imaginary of number. Now next question. There is given 3 plus 2 iota sin theta, 3 plus 2 iota sin theta over 1 minus 2 iota sin theta, और क्या कहा गया है is purely real, prove that is purely real। ये लिखा हुआ है find the real theta, find the रियल थीटा फॉर विच इट इज़ प्योरली रियल। तो देखो प्योरली रियल, तो सबसे पहले आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रॉपर बनाएं। नाउ मेक प्रॉपर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर मेकिंग दिस वर्क वी वुड लाइक टू रेशनलाइज इट बाय डिनोमिनेटर। तो नाउ रेशनलाइजेशन स्टार्ट, साइन थीटा 1 माइनस 2 आइटा साइन थीटा, रेशनलाइज में क्या करोगे आप 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा ओवर 1 प्लस 2 आइटा साइन थीटा। नाउ प्रोडक्ट, अपसाइड प्रोडक्ट करेंगे 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6 आइटा साइन थीटा। नाउ दिस इज प्रोडक्ट विद दिस 2 आइटा साइन थीटा and the product of 2 iota sin theta with 2 iota 2 to the 4 sin square iota square minus 4 sin square theta in the numerator you will get, and downside what we are getting 1 square minus of 2 iota sin theta whole square, right? Now again simplified it, 3 minus 4 sin square theta plus 8 iota 8 sin theta, downside 1 minus iota square is also minus, तो minus minus plus 2 to the 4 sin square theta that you are getting here. Now separatization is to be taking place, and after separation you are getting 3 minus 4 sin square theta upon 1 plus 4 sin square theta plus iota 8 sin theta over 1 plus 4 sin square theta. This is the separation of a complex number, a number in a complex form. Now the question is that it is purely real, meaning इसका imaginary part जो है वो क्या है 0, because a complex number is the form of real as well as imaginary part. तो यहाँ क्वेश्चन में इट इज मेंशन दैट इट इज प्योरली रियल, मतलब ये रियल ही है,
real having the values but the imaginary does not in its have, it means the imaginary part if you are getting on rationalization that is equivalent to the 0. So now use this concept is purely real, is purely real, which implies imaginary of this z equivalent to the 0, imaginary of this z equivalent to the 0. तो imaginary कौन है? दिस इज द इमेजनरी ऑफ दिस जेड, राइट. इसको क्या कर दो आप, 0 के इक्वल प्लेस कर दोगे आप. तो 0 के इक्वल प्लेस करोगे तो क्या आ गया, 8 साइन थीटा ओवर 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0. फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग दिस इज गोज इन द प्रोडक्ट एंड 8 साइन थीटा इक्वल 0, और कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल 0. साइन थीटा इक्वल 0 वेन एवर थीटा इज एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट है. थीटा इक्वल एन पाई, हर पाई के मल्टीपल पे साइन फंक्शन गिव्स द आंसर दैट इज ऑलवेज 0. तो थीटा क्या आया, एन पाई, जिसके लिए वो दिए गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आंसर क्या देती है, प्योरली रियल देती है. इट मीन्स इमेजनरी पार्ट क्या होगा, 0 के इक्वल प्लेस करना है. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, देयर आफ्टर सॉल्व इट इन ए प्रॉपर फॉर्म. देयर इज गिवन आयोटा माइनस 1. So one of the form is given. Before this we will know that अगर आपसे कहा जाए find out the value of sin 15 degree and the cos 15 degree, how we can calculate? In trigonometry we have discussed the two formulas for calculating of the 15 degree. We know that cos A minus B, that is equivalent to the cos A cos B, cos A minus B इक्वल, यहाँ फॉर्मूला आपने लिखा था cos A cos B प्लस साइन A साइन B. अगर cos A प्लस B में होती तो और cos A माइनस B में हो तो क्या फॉर्मूला बनता था, cos A cos B फिर माइनस साइन A साइन B. अगर साइन ए प्लस बी का ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना होता तो आप क्या बनाते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. और यहाँ माइनस में यहाँ क्या आता है, प्लस आता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, राइट है. देर आर टू फॉर्मूलाज, कॉस ए माइनस बी, cos A plus B, and these formulas are applied for solving the question of this. Understood this? तो अब हमें यहाँ पर 15 डिग्री कैलकुलेट करना है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो हम क्या करते हैं, ए और बी आर द सच एंगल इफ ए इज टू बी टेकन 45 डिग्री एंड बी इज टेकन 30 डिग्री. हमें ये वो एंगल लेने हैं जिनकी टेबुलर फॉर्म से हम वैल्यूज जानते हैं, ध्यान रखना. जिससे क्या होगा, हम इनकी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और साइन 15 और कॉस 15 की वैल्यूज निकाल लेंगे. दैट इज यूज इन द एग्जाम्पल नंबर 16. तो निकालें आप साइन 15 डिग्री विच इम्प्लाइज साइन 45 माइनस ऑफ 30 और इट विल एक्सप्रेस लाइक दैट साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 साइन 30. वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे. 10th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि इनकी वैल्यूज़, हाउ मच द वैल्यूज़ आर दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑन पर्टिकुलर थीटा. नाउ इट गिव्स √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2. दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री. नेक्स्ट कॉस 15 डिग्री अगर आपको कैलकुलेट करना है सिमिलर मैनर में तो क्या करोगे, कॉस 45 कॉस 30 प्लस
साइन 45 साइन 30, फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, यहाँ से 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 1/2, the result is √3 plus 1/2 √2. This is the cos 15 degree. These two trigonometric function is required in the example number 16. तो स्टूडेंट्स ये प्रॉपरली ध्यान रखें कि 15 डिग्री दैट इज द cos थीटा अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है आपका √3 -1/√3 15 डिग्री cos 15 हमने कैलकुलेट कर लिया, sin 15 हमने कैलकुलेट कर लिया। बोथ द वैल्यूज इफ इट विल बी यूज इन द क्वेश्चन देन प्रॉपरली यू विल यूज इट। ठीक है, ऐसे ही किसी भी फंक्शन की आपको वैल्यू निकालनी, 75 निकालना हो तो 45 + 30 कर लेना, दैट इज द 75। अगर सपोज करो 5π/12 इट मीन्स कितने डिग्री का एंगल हुआ ये। ठीक है, इसको यहाँ से कैंसिल करोगे, 15 टाइम 15 50 या 75 डिग्री। 75 इज टू बी एक्सप्रेस 45 + 30। यहाँ साइन a + b का फॉर्मूला लगाना, यहाँ cos a + b का फॉर्मूला अप्लाई करना और साइन 75 cos 75 की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेना। अगले क्वेश्चन में ये आपको यूज में आएगी, एग्जाम्पल नंबर 16। तो स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को करना बहुत ईजी है, दैट इज़ ईजी फॉर दोज हु आर डूइंग इन ए प्रॉपर मैनर। नंबर 1 पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि हम जब भी क्वेश्चन करें तो हमारा पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, हमें चीज़ें आनी चाहिए। व्हाट आर बीइंग यूज फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स नंबर दैट शुड बी मेमोराइज फर्स्ट, देयर आफ्टर रीड द क्वेश्चन प्रॉपर, देयर आफ्टर go through with the states, meaning go through with the question. Now different things are there. Mostly students are facing the problem to calculate the argument. So the argument part we have discussed in a proper manner here on in video. So do that concept apply for solving the argument as well as modulus as well as polar form. In different question you apply like that and solve each and every question. Students, I hope that you will go through with the as per the given instruction and solve questions in a proper manner. Now one of the question that is to be only simplification that I will take now, that is the question is iota power 18. One of the question that I will take only simplification, iota power 18 and evaluate is there, evaluate iota power 18 plus 1/iota power is 25 and thereafter whole power 3। तो एक चीज़ तो पहले समझें आप लोग, अब 11th क्लास में हैं, whenever the question is to be that evaluate the things, it means find out the value. If it is that solve it, it means find out the value, right? ये ध्यान रखना, whenever two things is to be in the question then you should be aware about that कि what does it mean, evaluation meaning solve it और solve it meaning proper का solution आपको देना है। तो हम iota power 4 that we know that is 1, so every iota higher degree is to be converted into the iota power 4. This 18 is converted iota power 4 into iota power 2, right है, clear, प्लस 1/iota दैट इज, अगर आप इसको सिंप्लीफाइड ऐसे ही कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, iota power 4 6 into iota 25 पावर थी तो 25 इज रिटर्न 64, 24 + 1 ओवर कितना है 3, राइट। आप थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर ले, iota power 4 1 और iota स्क्वायर, ठीक है, ये 1 हो गया पूरा, यहाँ ये 1 हो गया प्लस 1/iota power 3। iota स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है और 1/iota को रेशनलाइज करके इसकी वैल्यू निकाल ले, दैट इज iota/-1, इट मीन माइनस ऑफ iota। तो ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, iota स्क्वायर कितना है आपके पास -1 और 1/iota कितना है -iota,
ठीक है, पावर कितना आ गया 3। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें इसका क्यूब ओपन करना है, तो क्यूब ओपन करने के लिए क्या है, a माइनस बी का क्यूब। ठीक है, दोनों में माइनस है, आप चाहो तो माइनस को आउटसाइड भी ले सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो माइनस ऑफ वन प्लस आयोटा पावर 3, क्योंकि माइनस ऑड पावर्स में है, देन माइनस कम्स आउटसाइड। द क्यूब इज ओपन, तो -1 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3 1 स्क्वायर आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इंटू 1। यह आपने a प्लस बी पावर 3 ओपन कर ली। a फॉर्मूला इज देयर, a प्लस बी पावर 3 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b, या 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ से इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, आयोटा क्यूब मीनिंग आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू आयोटा, दैट रिजल्ट इज माइनस आयोटा। तो -1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा, और ये हो गया माइनस का 3, क्या हो गया 1 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसको दोबारा लिखेंगे आप, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, आउटसाइड माइनस, देन द रिजल्ट इज 2 माइनस 2 आयोटा ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन एक्सरसाइज 5th का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया है। आपको ये देख लेना है 5th एक्सरसाइज मिसलेनियस का 2 माइनस 2 आयोटा, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हायर पावर ऑफ आयोटा, हाउ इट कैन बी एक्सपेंडेड, if the form is proper, then solve like that. Again I will say, each student solve this exercise in their notebook. This chapter becomes complete today. Thank you very much.